Hello everyone, welcome to my channel HSV Harman Study Vlog. Today we discuss the topic agarose gel electrophoresis. So let's start with its introduction. Introduction of agarose gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis is a method to separate DNA or RNA molecules by size. जो agarose gel electrophoresis है ये ऐसा मेथड है जो इसमें डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन होती है बाय साइज. This is achieved by moving negatively charged nucleic acid molecules through an agarose matrix with an electric field. So this is achieved by moving negatively charged nucleic acid molecules. जो negatively charged nucleic acid molecules हैं उनकी moving होती है through an agarose matrix with an electric field. Shorter molecules move faster and migrate faster than longer ones. जो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव भी करते हैं फास्ट और माइग्रेट भी करते हैं फास्ट एज कंपेयर टू लॉन्गर वंस. The next is principle of agarose gel electrophoresis. Gel electrophoresis separates DNA fragments based on size in an agarose gel. So जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो सेपरेट्स करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को किस पे बेसिस पे साइज के बेसिस पे इन एन agarose gel. DNA is peptide into the sample well followed by the application of an electric current which causes the negatively charged DNA to migrate towards the positive end. Then DNA peptide होता है into the sample wells. Then electric current pass होता है. So जो negatively charged DNA है वो migrate करता है towards the positive end. So इसमें क्या होता है कि जब हम agarose gel को प्रिपेयर करेंगे जब हम आग्रोस को लेंगे देन हम उसमें उसको बफर में डालेंगे मेल्ट करेंगे देन मेल्ट करने के बाद हम उसको जेल कास्टिंग ट्रे में डालेंगे देन डालने से पहले हम क्या करते हैं उसमें कॉम को फिक्स करेंगे देन जेल को ट्रे में डालेंगे देन जेल क्या हो जाएगा फैल जाएगा देन वो सॉलिडफाई हो जाएगा जब वो सॉलिडफाई हो जाएगा देन हम उसमें से जो कॉम हमने लगाई थी उसको निकाल देंगे देन जब हम उसमें से कॉम निकाल देंगे तो उसमें क्या बन जाएंगे वेल्स बन जाएंगे जो ये वेल्स होते हैं वो डीएनए सैंपल को डालने के लिए हम यूज़ करते हैं देन इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है देन जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो माइग्रेट करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. The rate of migration is proportional to size. Smaller fragments move more quickly and wind up at the bottom of the gel. So जो rate of migration है वो depend करती है on DNA fragment size पे. So जो smaller fragments होते हैं वो move करते हैं more quickly और wind up हो जाते हैं at the bottom of the gel. DNA is visualized and intercalating diethidium bromide. So DNA visualize होता है and intercalating diethidium bromide. DNA fragment take up the dye as they migrate through the gel. So DNA fragment क्या करता है dye को taken up कर देता है जब वो migrate कर रहा होता है through the gel. Illumination with ultraviolet light causes the intercalated dye to fluorescence. The larger fragment fluorescence more intensely. So जब हम आग्रोस को प्रिपेयर कर रहे हैं देन बफर में हम जो डाल के हम उसको क्या करते हैं मेल्ट कर रहे हैं देन मेल्ट करने के बाद जब हम उसको कास्टिंग ट्रे में डालेंगे देन उसके पहले हम क्या डालते हैं इथिडियम ब्रोमाइड को उस जेल में डाल देंगे देन उसको पोर करते हैं हम ट्रे में देन जो डीएनए फ्रेगमेंट इथिडियम ब्रोमाइड है इंटरक्लेटिंग डाई होती है तो ये डीएनए में क्या होता है बैठ जाएगा जब इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं वो पड़ेंगी तो ये क्या दिखाएगा हमें फ्लोरोसेंस दिखाएगा. A ladder set of DNA fragments of known size can be run simultaneously and used to estimate the size of unknown fragments. So जो ladder डीएनए फ्रेगमेंट्स है जिसकी साइज़ हमें पता होती है तो उसको क्या लैडर है लैडर में डीएनए फ्रेगमेंट्स है जिसकी साइज़ हमें पता होती है इसको हम रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हैं और जो अननोन डीएनए सैंपल होते हैं उसके साइज़ को हम पता करते हैं. The next is gel electrophoresis material. So see gel tank, power supply, casting tray, cover, electric leads. The next is instrumentation of agarose gel electrophoresis. An electrophoresis chamber and power supply. So see in the picture chamber and power supply.
Second, gel casting tray, which are available in a variety of sizes and composed of UV transparent plastic. The open end of the tray are closed with tape while the gel is being cast, then removed prior to electrophoresis. So ये available होती हैं वैरायटी ऑफ साइजेस में और कंपोज होती हैं यूवी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के साथ। जो ओपन एंड होते हैं ट्रे के वो क्लोज होते हैं विद टेप। जब वाइल द जेल इज बीइंग कास्ट देन रिमूव कर देते हैं प्रायर टू इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो जेल को हम जब इसमें डालते हैं तो डालने से पहले हम इस कास्टिंग ट्रे में हम कॉम को प्लेस करेंगे, देन जेल को हम प्रिपेयर करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड को डालेंगे, फिर जेल को डालेंगे, देन हम उसको क्या कर देते हैं सॉलिडिफाई कर देते हैं। सो इसमें कॉम लगी होती है, देन कॉम को लगाने के बाद हम इसको जो जेल है वो सब डाल दिया, देन जेल क्या हो गया अब सॉलिडिफाई हो गया। द नेक्स्ट इज सैम्पल कॉम्ब अराउंड विच मॉल्टन मीडियम इज पॉट टू फॉर्म सैम्पल वेल इन द जेल। सो इसमें हम उसको जो जेल था वो उसमें डाला, हमने कॉम लगाई हुई थी। अब हम क्या करेंगे, हम कॉम को जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा देन हम कॉम को रिमूव कर लेते हैं। तो इसमें क्या बन जाती हैं, वेल्स बन जाती है डीएनए सैंपल को पॉर करने के लिए। तो सी वो सैंपल जो वेल्स हैं वो बनी हुई हैं, उसमें वो क्या डाल रहे हैं, अब डीएनए सैंपल को डाल रहे हैं। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर यूजली ट्राइस एसिटेट EDTA TAE और ट्राइस बोरेट EDTA TBE। सो जो डीएनए सैंपल हम डाल रहे हैं अब वो मूव कैसे होगा, उसको मूव होने के लिए क्या चाहिए, बफर चाहिए। सो डीएनए के मूवमेंट के लिए ये बफर यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इज लोडिंग बफर विच कंटेन्स समथिंग डेंस, एग्जाम्पल ग्लिसरोल, टू अलो द सैंपल टू फॉल इनटू द सैंपल वेल्स। सो जो डीएनए है वो लाइट वेट का होता है, अगर आप वेल में डालोगे तो वो ईजिली बफर के साथ मिक्स होकर बाहर चला जाएगा। सो वेल के अंदर रखने के लिए डीएनए को रिटेन करने मतलब करके रखना पड़ता है। तो जो ग्लिसरोल उसको क्या करता है, रिटेन करके रखता है। सो ग्लिसरोल यूज़ करना होता है हमें। सो ये ग्लिसरोल है वो एक डेंस मॉलिक्यूल होता है जो डीएनए को पकड़कर रिटेन करके रखेगा और उसको बाहर नहीं जाने देगा, बफर के साथ मिक्स नहीं होने देगा। And one or two tracking dye which migrate in the gel and allow visual monitoring or how far the electrophoresis has proceeded. So tracking dye हम ब्रोमोफिनोल इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता लगे कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है, जो डीएनए की माइग्रेशन हो रही है वो कहाँ तक हुई है, इसलिए हम ट्रैकिंग डाई एज अ ब्रोमोफिनोल ब्लू यूज़ करते हैं। सो सी इन द पिक्चर आग्रोस जेल, देन बफर, जेल कॉम्ब लगी हुई है और जो माइग्रेशन हो रही है साइड पे नेगेटिव टू पॉजिटिव। द नेक्स्ट इज स्टेनिंग। डीएनए मॉलिक्यूल्स आर इजिली विजुलाइज्ड अंडर एन अल्ट्रावायलेट लैम्प व्हेन इलेक्ट्रोफोरेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रिंसिक फ्लोर इथिडियम ब्रोमाइड। सो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो इजिली विजुलाइज हो रहे हैं अंडर एन यूवी लैम्प, किसकी प्रेजेंस में, एक्सट्रिंसिक फ्लोर इथिडियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में। सो इसमें हमने दो मेथड्स किए। एक तो मेथड था जो मैंने आपको पहले समझाया कि हमने जब जेल डालनी थी तब हमने इथिडियम ब्रोमाइड डाली, देन जेल डाली, देन वो सॉलिडिफाई हो गया, देन उसमें कॉम्ब लगाई। एक तो मेथड वो था कि हमने इथिडियम ब्रोमाइड को हमने पहले ही जो ट्रे थी उसमें डाल दिया था। अल्टरनेटली न्यूक्लिक एसिड कैन बी स्टेन्ड आफ्टर electrolytic separation by soaking the gel in the solution of ethidium bromide। सो अल्टरनेटली एक मेथड है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं हम उसको स्टेन कर सकते हैं आफ्टर इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेपरेशन है उसके बाद हम उसको स्टेन कर सकते हैं बाय सोकिंग द जेल इन अ सोल्यूशन ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड। तो जो वो जेल है हम उसको इथिडियम ब्रोमाइड के सोल्यूशन में सोक कर सकते हैं। When intercalated into double-stranded DNA, fluorescence of this molecule increases greatly। सो इससे क्या होता है, जो इथिडियम ब्रोमाइड है वो एक इंटरकलेटिंग डाई होता है जो कि आपके डीएनए डबल हेलिक्स उसके बीच में बैठ जाता है और उसको हम ट्रांस इल्यूमिनेटर के थ्रू देख सकते हैं जहाँ यूवी लाइट पड़ता है और आपके डीएनए को वो फ्लोरोसेंस दिखाता है। It is also possible to detect DNA with the extrinsic fluor-1 anilino 8 naphthalene sulfonate। तो ये पॉसिबल है कि हम इसके थ्रू भी डीएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो सी इन द पिक्चर, ये लैडर है जो साइड में बने हुए हैं, वो लैडर बनी हुई है। तो लैडर क्या है, नॉन फ्रेगमेंट होते हैं डीएनए के
और जो नंबरिंग लिखी हुई है वो क्या होते हैं, अननोन होते हैं। और हम साइज़ को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं और हमारे जो डीएनए है उसके साइज़ को हम पता करते हैं। The next is trans illuminator, an ultraviolet light box which is used to visualize strained DNA in cells. So इसमें क्या हम यूज़ करते हैं, इसको जो स्ट्रेन डीएनए को विजुलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होते हैं, डीएनए के बैंड होते हैं जिसको हम विजुलाइज करते हैं। ये ऑरेंज कलर के हैं, वो क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड फ्लोरोसेंस हैं। द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ आग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल के साइज़ के लिए हम एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर के प्रोडक्ट के एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। सेपरेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड जीनोमिक डीएनए प्रायर टू साथुरन एनालिसिस और ऑफ आरएनए प्रायर टू नॉर्थरन एनालिसिस। हम इसमें सेपरेशन होती है डीएनए प्रायर टू आरएनए प्रायर। The agarose gel electrophoresis is widely employed in restriction mapping of clone DNA। तो मैपिंग ऑफ क्लोन डीएनए की वाइडली एम्प्लॉयड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। agarose gel electrophoresis is commonly used to resolve circular DNA with different supercalling topology and to resolve fragment then differ due to DNA synthesis। ये commonly यूज़ करते हैं हम circular DNA with different supercalling topology and resolve fragments then differ due to DNA synthesis। The next is advantages and disadvantages of agarose gel electrophoresis। The first is advantages. The main benefit of agarose gel electrophoresis is that it can be easily processed। Agarose gel doesn't denature the DNA sample and they stay in their own form। मेन बेनिफिट क्या है कि ईजिली प्रोसेस हो जाता है, ये डीएनए सैंपल को डीनेचर नहीं करता एंड दे स्टे इन देयर ऑन फॉर्म। डिसएडवांटेज, देयर इज आल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इट मे मेल्ट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। इसकी डिसएडवांटेजेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कि ये मेल्ट हो जाता है, इट में मेल्ट, कभी कभी मेल्ट हो जाता है जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द agarose gel electrophoresis। If you like my videos, please subscribe my channel, like, share and comment. Thanks for watching.